Hello my dear friends, welcome to the Soundarya Nursing channel. So in this video we are going to study about medicine in the Middle Ages. So मेडिसिन मिडल एज में कैसे थे करके पढ़ेंगे हम इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट. मेडिसिन फ्lourished in the Islamic world. In the 10th century, a Persian doctor called Al-Razi was the first to distinguish between the smallpox and the measles. सो फर्स्ट मेडिसिन जो है इस्लामिक वर्ल्ड में बना था 10th सेंचुरी में. सो दैट पर्सियन डॉक्टर नेम इज़ अल-राज़ी एंड अल-राज़ी ने स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स के बिटवीन डिस्टिंग्विश किया था. देन नेक्स्ट पॉइंट इज अल्बुकेसिस राइट अबाउट हीमोफीलिया. सो हीमोफीलिया को अल्बुबिस ने राइट किया था. अल्बुकेसिस राइट अबाउट द हीमोफीलिया. देन मुस्लिम्स next point, Muslims established many hospitals. They also invented distillation and sublimation. Means purifying substances by changing them straight to from solid to vapor without going through the liquid state then back again. In the Middle Ages, only monasteries had sanitation. Then streams provided clean water and dirty water was used to clear toilets which were in separated room. So मुस्लिम्स ने जो है ज़्यादा जो है हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया था मुस्लिम पीपल्स. देन और उन्होंने डिस्टिलेशन एंड सब्लिमेशन भी इन्वाइटेड किया था. एंड आफ्टर दैट in the Middle Ages only monasteries had a sanitization and streams provided clean water. Streams is nothing but river. So river जो है clean water provide करती है and dirty water जो है used for the clear toilets which is were in separated room. dirty water जो है टॉयलेट क्लीन करने के लिए यूज़ करते थे. So this is about the medicine in the Middle Ages. Next, 16th century medicine. Germano Fraxtro suggested that infectious diseases were caused by disease seeds, which were carried by the wind or transmitted by touch. So, Germano Fraxtro ने जो है क्या सजेस्ट किया था कि इन डिसीज जो है डिसीज सीड से आता है एंड दैट इज़ ट्रांसमिटेड बाय थ्रू द टच. सो थ्रू द टच जो है डिसीज़ आता है करके उन्होंने बोला था इन 16th सेंचुरी. देन लियोनार्डो डा विंची discarded some human bodies and made accurate drawing of what he saw. Then another great surgeon was Ambrose Speer. So another great surgeon का नाम क्या है? Ambrose Speer. In the 16th century, surgeons put oil on wounds. 16th century में जो है सर्जन ने क्या किया था? wounds के ऊपर जो है ऑयल डाला था. And he made a mixture of egg whites, rose oil and turpentine and they discovered it worked better than oil. फिर बाद में पहले उनके ऊपर ऑयल डालते थे, बाद में जो है एग वाइट देन रोज़ ये सभी जो है उनके ऊपर डालते थे. फिर उन लोगों को पता चला कि ऑयल से भी ज़्यादा अच्छा वर्क किससे आता है? एग वाइट से एंड द टर्पेंटाइन से बेटर दैन द ऑयल. फिर बाद में उनको पता चला कि ऑयल से भी अच्छा रिजल्ट जो है एग वाइट से आता है करके. देन पेयर आल्सो डिजाइन्ड आर्टिफिशियल लिम्स. इन 1513 Eucharius Roslin published a book about the childbirth called Rosengarten. So in the 1540 an English translation called The Birth of Mankind was published. So it became a standard text although midwives were human. So syphilis was common in the 16th century. So 16th century में जो है syphilis जो है common था. Then standard treatment was mercury administered with the urethral syringe. फिर बाद में standard treatment करने के लिए जो है उन लोगों ने वो लोग क्या यूज़ करते थे? urethral syringe, that is a mercury. Then in the 16th century syringes were also used to irrigate wounds with wine. फिर 16th सेंचुरी में जो है सिरिंजेस यूज़ किए जो कि ऊन में जो है इरीगेट वूंड्स विद द वाइन.
वो करने के लिए हेल्प भी होता था। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिसिन इन द 17th सेंचुरी। हिस्ट्री देखो ऐसे रहती है, कुछ ज़्यादा है ना, जस्ट पॉइंट से आते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग एक लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी डेट्स है एंड क्या क्या इनवाइटेड किया है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। इसमें 1 मार्क्स के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एंड और ज़्यादा कुछ नहीं, सो इजीली पढ़ो, राइट। सो देन मेडिसिन इन द 17th सेंचुरी। फिर 17th सेंचुरी में क्या हुआ था? सो इटालियन कॉल्ड सैंचियो इन्वाइटेड द मेडिकल थर्मामीटर। सो मेडिकल थर्मामीटर को किसने इन्वाइटेड किया था? सैंचियो। सो सैंचियो ने मेडिकल थर्मामीटर को इन्वाइट किया था। हिस्ट्री में बस ये देखते हैं कि किसने क्या इन्वाइट किया था एंड विच ईयर। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। सो हिस्ट्री में बस इतना ही है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इन 1628 विलियम हार्वे फाउंड दैट हाउ ब्लड सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी। सो हमारे बॉडी के अराउंड जो है ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है करके विलियम हार्वे ने फाउंड किया था। इन विच ईयर? 1628। देन हार्वे रियलाइज दैट द हार्ट इज़ पम्प। फिर हार्वे ने उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि हार्ट जो है पंप करता है करके। तब तक जो है किसी को पता नहीं था कि हार्ट भी पंप करता है, राइट। सो 1628 में जो है विलियम हार्वे ने उन्होंने जो है फाइंड आउट किया कि ब्लड जो है हमारे बॉडी के अराउंड सर्कुलेट करता है एंड हार्ट जो है पंप करता है, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ईच टाइम इट कॉन्ट्रैक्ट्स इट पम्प्स आउट ब्लड। और उन्होंने क्या जाना कि ईच टाइम जो है हमारा हार्ट पंप करता है एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है आउट द ब्लड एंड द ब्लड सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी। और ब्लड जो है हमारे बॉडी के अराउंड सर्कुलेट करती है। नेक्स्ट पॉइंट, हार्वे देन एस्टिमेटेड हाउ मच ब्लड वाज बीइंग पम्प्ड ईच टाइम। और उन्होंने ये भी जाना कि कितने समय में जो है हमारा ब्लड पंप करता है ईच टाइम में। सो नेक्स्ट पॉइंट, फाइनली इन 1683 एंटोइन वैन ल्यूहेनहोइक ऑब्जर्व्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसने इन्वाइट किया? नॉट इन्वाइट, मतलब किसने ऑब्जर्व किया मीन्स एंटोइन वैन ल्यूहेन ऑब्जर्व। और हम इनको जो है माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी बोलते हैं एंटोइन वैन ल्यूहेन को। सो कब उन्होंने ऑब्जर्व किया? इन 1683। सो ये भी एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर्स डिस्कवर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया विद द बार्क फ्रॉम द सैनहोना ट्री। सो वो डॉक्टर्स ने क्या इन्वाइट किया कि मलेरिया का ट्रीटमेंट इन्वाइट किया। देन नेक्स्ट पॉइंट, द चाइनीज़ इन्वेंटेड द टूथब्रश। सो चाइनीज़ ने टूथब्रश को इन्वाइट किया। चाइनीज़ वालों ने क्या इन्वाइट किया? टूथब्रश को। सो इट वाज द फर्स्ट मेंशन इन द 1498। सो 1498 में जो चाइनीज़ वालों ने टूथब्रश को इन्वाइट किया। नेक्स्ट पॉइंट, द टूथब्रश अराइव्ड इन द यूरोप इन द 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी में जो है टूथब्रश को यूरोप में जो है इन्वाइट किया। आफ्टर दैट इन द लेट 17th सेंचुरी दे बिकम पॉपुलर विद द वेल्दी इन इंग्लैंड। फिर बाद में 17th सेंचुरी में जो है पॉपुलर हुए इन विच कंट्री? इन इंग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिसिन इन द 18th सेंचुरी। सो 18th सेंचुरी में क्या क्या इन्वाइट हुआ वो देखेंगे हम। सो जॉन हंटर इन्वाइटेड ट्रेकेस्टोमी एंड फाउंड ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी बाय गिविंग जूस ऑफ लेमन। सो जॉन हंटर ने जो है ट्रेकेस्टोमी को इन्वाइट किया। ट्रेकोस्टोमी इज नथिंग बट सर्जरी ऑफ द ट्रेकिया, राइट। सो सर्जरी ऑफ ट्रेकिया फर्स्ट टाइम किसने फाउंड किया? जॉन हंटर ने। देन और आल्सो treatment of scurvy. Scurvy is nothing but it is a deficiency of vitamin C. So deficiency of vitamin C is what happen means in that we call as scurvy. Scurvy होता है अगर विटामिन सी अगर डेफिशिएंसी हुआ तो। then by giving juice of lemon. So Edward Jenner found the vaccination of chicken pox.
फिर एडवर्ड जेनर ने जो है चिकन फॉक्स को इन्वाइट किया इन विच सेंचुरी 18th सेंचुरी. सो नेक्स्ट मेडिसिन इन द 19th सेंचुरी. सो 19th सेंचुरी में क्या क्या इन्वाइट हुआ वो देखेंगे. सो लेनी लाइनैक इन्वाइटेड स्टेटोस्कोप. सो स्टेटोस्कोप को जो है रेनी लाइनैक उन्होंने जो है स्टेटोस्कोप को इन्वाइट किया इन द 19th सेंचुरी. नेक्स्ट पॉइंट लुइस पास्चर क्रिएटेड वैक्सीन फॉर रेबीज. सो लुइस पास्चर ने जो है रैबीज़ वायरस जो है इन्वाइट किया. रैबीज़ वायरस इज़ नथिंग बट डॉग बाइट. जब डॉग बाइट करता है तब हमें रैबीज़ वायरस जो है होता है. सो जब भी डॉग बाइट करता है जब जो एक वैक्सीन देना पड़ता है. सो दैट वैक्सीन नेम इज़ रैबीज़ मीन्स व्हेन द डॉग इज़ बाइट. सो दैट किसने वैक्सीन को फाउंड किया मीन्स लुइस पास्चर ने. नेक्स्ट वैक्सीन फॉर टाइफाइड वाज आल्सो इन्वाइटेड. लुइस पास्चर ने नॉट ओनली द फाइंड आउट द रैबीज आल्सो they are find out the treatment of typhoid also. Then rubber gloves were first used in surgery in 1890. रबर ग्लव्स को जो है सर्जरी के लिए यूज़ करने के लिए 1890 में जो है फर्स्ट इस्टेब्लिश किया. इन विच ईयर इन विच सेंचुरी मीन्स 19th सेंचुरी. सो नर्सिंग वाज ग्रेटली इम्प्रूव्ड बाय टू नर्सेस. दैट नेम इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड मैरी सैकहॉल. सो टू नर्सेस के वजह से जो है नर्सिंग इम्प्रूव हुआ है. सो दैट नर्सेस नेम इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल and the Mary Sackholl, so who both nursed soldiers during the Crimean War 1854 to 56. Then meanwhile in the 19th century several more hospitals were found in London including Great Ormond State Children's Hospital. So और 19th सेंचुरी में जो है बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी जो है फाइंड हुए इन लंदन में जो है सेवरल हॉस्पिटल जो इन इस्टेब्लिश किया. देन ग्रेट ऑर्मोंड स्टेशन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल. फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी इन्वाइट किया गया. आफ्टर दैट in 1864 Jane Henry Dunant founded the International Red Cross and from 1865 women in Britain were allowed to become doctor. So फिर 1864 में जनरल हेनरी ने जो है इंटरनेशनल रेड क्रॉस को जो है फाउंड किया. आफ्टर दैट इन 1865 वुमेन इन ब्रिटेन वेर अलाउड टू बिकम डॉक्टर. फिर 1865 में जो है वुमेन्स को भी डॉक्टर बनने के लिए अलाउ है करके उन्होंने जो है एक कानून खोला. सो दिस इज़ अबाउट द 19th सेंचुरी. सो मेडिसिन द 19th सेंचुरी में क्या क्या हुआ, क्या क्या एस्टेब्लिश हुआ. नेक्स्ट मेडिसिन इन द 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी में क्या हुआ. सो डिफरेंट ब्लड टाइप वेर आइडेंटिफाइड. सो डिफरेंट टाइप के ब्लड टाइप को जो है आइडेंटिफाई किया 20th सेंचुरी में. देन इंसुलिन एंड EEG वाज आल्सो इन्वाइटेड. सो इंसुलिन जो एक इंजेक्शन है जो कि ज़्यादा हम किस में देते शुगर में, ठीक है. डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट्स में हम ज़्यादा देखते हैं इंसुलिन देते हैं. सो इंसुलिन एंड EEG को जो इन्वाइट किया इन 20th सेंचुरी. सो नेक्स्ट पॉइंट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेंसिलिन. सो पेंसिलिन को किसने इन्वाइट किया मीन्स किसने डिस्कवर्ड किया, अलेक्जेंडर. सो आयरन लंग एंड द आर्टिफिशियल किडनी मशीन इन्वाइटेड. और अलेक्जेंडर ने और क्या इन्वाइट किया कि आयरन लंग और आर्टिफिशियल किडनी मशीन को इन्वाइटेड किया. एंड पोलियो वैक्सीन आल्सो इन्वाइटेड. पोलियो वैक्सीन को भी जो अलेक्जेंडर ने इन्वाइट किया इन 20th सेंचुरी. एंड द फर्स्ट हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड. और फर्स्ट हार्ट और लंग का भी जो ट्रांसप्लांट किया गया इन 20th सेंचुरी. देन WHO eradicated smallpox. CT scan is nothing but computerized axial scanning. So an MRI was invented. So MRI भी जो इन्वाइटेड किया 20th सेंचुरी में. एंड गेन थेरेपी वाज इंट्रोड्यूस इन द 1990. तो 1990 में जो है गेन थेरेपी को जीन थेरेपी, आई एम रियली सॉरी, दैट इज़ जीन थेरेपी को भी जो इंट्रोड्यूस किया इन 1990 में.
सो दिस इज़ द मीन्स 20th सेंचुरी में क्या क्या इन्वेंट किया. सो दिस इज़ अबाउट 20th century. Then last point of in the history of medical surgical nursing, that is evaluation of surgery. So evaluation of surgery में क्या क्या हुआ था, so वो पढ़ेंगे हम. सुश्रुता. So सुश्रुता, one of his disciples, attained great proficiency in the surgery, lived sometimes in 400 BC. So his famous writing known as सुश्रुता संहिता. सो फेमस राइटिंग क्या था सुश्रुता उनका मीन्स सुश्रुता संहिता. सो आर devoted essentially to surgery and it have a surgical text of Ayurveda. So it also evident that major abdominal operation were also carried out for the vesicle calculi and the fistula, fracture, extraction of fetus in abnormal presentations, ambulation, excision of tumor, repair of hernia and coaching of contact. So सुश्रुता ने और क्या क्या डिवाइड किया था, मीन्स उन्होंने जो है आयुर्वेदा में भी सर्जिकल जो है टेक्स्ट किया था. आफ्टर दैट उन्होंने जो है मेजर अब्डोमिनल ऑपरेशंस को भी जो है कैरिड किया था. दैट इज़ कैलकुलाई, एनल फिस्टुला, फ्रैक्चर्स, extraction, fetus and many abnormal presentations and the ambulations को जो है उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था. देन rhinoplasty and the plastic surgery was also done. So वैल्यूएशन ऑफ सर्जरी में जो है मीन्स 400 BC में जो है राइनोप्लास्टी एंड द प्लास्टिक सर्जरी को भी डन किया था. मीन स्किन ग्राफ्टिंग, प्लास्टिक सर्जरी मीन स्किन ग्राफ्टिंग भी किया था. ही आल्सो मैंशनड knives and the needles depend upon their यूज़ एंड द टिश्यूज़ कॉन्सर्न. फिर आल्सो उन्होंने क्या मेंशन किया था कि नीज एंड द नीडल्स भी जो है उनके टिश्यू के ऊपर कंसर्न किया जाता है करके उन्होंने जो है इन्वाइट किया था. If you have something doubt means please ask, and thank you for watching. So this is the history of medical surgical nursing.